بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے 9ویں اور 10ویں نشست کے اندر قرآن آیات سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے متعلق آپ نے دونوں نشستیں سنی، لیکن یاد رہے کہ ہم نے جہاں پر یہ دلائل پیش کیے، ہم نے قرآن آیات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بیعت کرنا، بیعت تقوی، تصوف کی بیعت، نیک اعمال کے لیے بیعت کرنا، یہ سنت ہے۔ لیکن اس سے پچھلی نشستوں کے اندر ہم نے عرض کیا کہ یہ چشمہ تصوف کا بہت صاف ستھرا، بہت خوشبودار، بہت معطر، بہت مزکہ مصفہ تھا، لیکن اس چشمے کے اندر گدلے چشمے داخل ہو گئے۔ یہ ادارہ بہت اچھا تھا، لیکن اس ادارے کے اندر فرد کرپٹ آ گئے، تو لہٰذا اس شعبہ کے جو مؤسسین اور بانیان تھے، انہوں نے پھر قرآن مجید برہان رشید سے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی کہ کوئی بھی شخص مرشد ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی بھی شخص علم تصوف کا عالم ہونے کا دعویٰ کرے، استاذ ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس کے لیے ایک کرائٹیریا رکھا، اس کے لیے کچھ حدود و قیود رکھی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ایرا وغیرہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں پیر ہوں اور آپ لوگ بھی اس کو پیر مان لیں، تو لہٰذا ایسا نہیں۔ یاد رکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 کے اندر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، بالکل اس بندے کی اطاعت نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ بالکل خبردار اس بندے کی کبھی اطاعت نہ کرو، اس بندے کو کبھی اپنا شیخ تسلیم نہ کرو، اس بندے کو کبھی اپنا رہبر اور رہنما تصور نہ کرو، کہ جس کا دل پہلے ہی اللہ کی یاد سے مردہ ہے۔ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو گیا۔ اب نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنانا، یہی خواہشات کی پیروی ہے۔ تو جو بندہ اپنے خواہش کے تابع ہے، تو وہ بندہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا ہے، تو لہٰذا وہ حدیں کراس کر گیا شریعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی، لہٰذا بابا وہ کبھی پیر نہیں، وہ تو شیطان کا نمائندہ ہے، تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ بالکل ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ جسے اپنا شیخ تسلیم کریں، آپ جسے آپ اپنا استاذ مقرر کریں، آپ جس کی شاگردی میں آئیں، آپ جس کی مریدی میں آئیں، تو وہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر قرآن مجید برہان رشید یہی 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرماتا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں پر بڑی خوبصورت تفسیر حکیم الامت حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ ہر شخص کا دنیا کے اندر امام ہونا چاہیے، تو شریعت کے اندر یعنی بندے کو تقلید کرنی چاہیے، اور طریقت کے اندر، تصوف کے اندر بندے کو مرید ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنے پیر کا ایسا انتخاب کریں کہ جس طرح شریعت کے اندر آپ اپنے فقیہ کا یا آپ اپنے امام کا ایسا انتخاب کرتے ہیں، وہ عالم ہو، باعمل ہو، سنت کا پابند ہو، شریعت کو جانتا ہو۔ اسی طرح جب آپ طریقت کے اندر آپ کسی کو اپنا امام مقرر کریں اور علم باطن سیکھنے کے لیے، علم الاخلاص سیکھنے کے لیے، روحانیت کی منازل طے کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، جب آپ اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا انتخاب کریں، تو اس کو پہلے پرکھیں، کیا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہے، کیا وہ شریعت کا پابند ہے۔ اگر وہ عالم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پابند ہے، اگر اس کے اندر خوف خدا ہے اور وہ خود اتباع رسول ہے اس کے اندر، تو پھر ضرور اس سے بیعت کریں۔ اگر وہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ بندہ قطعی طور پر پیر نہیں، بلکہ وہ شیطان ہے۔ تو شیخ کے لیے
मशहूर ज़माना किताब कशफुल महजूब, सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो आपने लिखा अश-शैख़ु फ़ी कौमिही कन नबी फ़ी उम्मती, कि शेख अपनी कौम में ऐसे होता है जैसे नबी अपनी उम्मत में। तो लिहाजा यानी शेख उम्मत के लिए एक आइडियल होता है, एक नमूना होता है, उसके मुरीदीन उसकी इत्तिबा करते हैं। तो लिहाजा शेख को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और शरीयत का पाबंद होना बहुत ज़्यादा लाजिम है। इसके लिए मकतूबात शरीफ का मुतालिया करें, मकतूबात इमाम रब्बानी का मुतालिया करें, और इसमें हजूर मबदा माद का मुतालिया करें, और हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक इरशाद खिलाफत आपका एक रिसाला है, उसको पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको उसकी बहुत सारी समझ आएगी। फिर आला हज़रत से उसी फतावा रज़विया में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शर्तें लिखी हैं कि शेख कामिल के लिए पहली शर्त ये है कि वो बाइत्तिसाल सही हो, यानी उसका वास्ता बैत दर बैत, दस्त दर दस्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो। पहली शर्त इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। फिर फरमाते हैं कि वो सहीउल अक़ीदा हो, सुन्नी हो, ना कि गुमराह हो, तो सहीउल अक़ीदा हो। फिर तीसरी शर्त फरमाते हैं कि वो आलिम हो, और इतना कम अज़ कम, लेकिन यहाँ पर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने लिखा कि इतने मसाइल से वाकिफ़ हो कि जब उसको किसी मसाइल की ज़रूरत पड़े वो किताबों से मसाइल को अख़ज़ कर ले, और वो तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब के उलूम उसके पास हों, और उसके पास बातनी उलूम हों। दूसरा, वो फास्क़े मुअल्लन ना हो, यानी एलानिया गुनाह ना करता हो, एलानिया गुनाह ना करता हो। तो ये ढोल के आकर नाचना, ढोल के आकर नाचना ये हराम है, क़तई तौर पर हराम है। भंगे पीना, चरसे पीना, ये बड़े बड़े बाल छोड़ देना, नमाज ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, रोज़ा, हज, ज़कात, और उस यहाँ तक कि उस बेचारे जाहिल को वुज़ू और तहारत के मसाइल तक का इल्म ना हो, तो इससे बड़ा फास्क़े मुअल्लम कौन हो सकता है? ये एलानिया गुनाह है। तो ऐसा शख्स कभी भी पीरी के काबिल नहीं है। और फिर हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़ी गौर से सुन लीजिए, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने फरमाया कि पीर, उसके लिए पीर कामिल वो है जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत और इज़्ज़त व मर्तबे की चाहत ना करता हो, जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई हो। फिर हज़रत आगे आप फरमाते हैं ऐसा मुर्शिद कामिल हो, दूसरी शर्त आप लिखते हैं कि आप उससे बैत हो जो जिसके पास नूर बसीरत से जो माला माल हो। फिर आगे लिखते हैं नेक आमाल बजा लाता हो। अब जो मैंने अर्ज़ किया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो फ़र्ज़ हैं, इसके बाद वो सुन्नत का पाबंद हो, फिर सुन्नत के बाद वो मुस्तहब्बात पर आमिल हो, नेक आमाल कसरत से बजा लाता हो, फिर उसका जो नफ्स है, उसकी तबीयत हो जो है वो रियाजत पर आती हो, ये है कि वो रियाजत करता हो, इबादत कसरत से करता हो, फिर वो बहुत कम खाता हो, फिर बहुत कम सोता हो, और वो बहुत कम बोलता हो, कसरत के साथ नवाफिल पढ़ता हो, और रमज़ान के अलावा वो कसरत के साथ रोज़े रखता हो, फिर आगे वो खूब कसरत से सदका करता हो, कंजूस भी ना हो, खूब सदका व खैरात करता हो, नेक आमाल बजा लाता हो। तो फिर आप फरमाते हैं कि वो इत्तिबाए रसूल के साथ साथ वो साबिर हो, सब्र उसके अंदर हो, नमाज का पाबंद हो, फिर कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने वाला हो, फिर उसके अंदर मुतवक्कल हो, अल्लाह पर उसका यकीन हो, तवक्कुल हो, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया, कंजूस ना हो। फिर आप फरमाते हैं सखी हो, सखावत करने वाला हो, सारा ज़माने का माल हड़प कर जाए और वो लालची हो, और फिर उसके अंदर को सखावत का अंसर ही ना पाया जाए, तो ऐसा शख्स भी मुर्शिद और शेख कामिल नहीं हो सकता। फिर वो कनात यानी फजूल खर्ची ना करता हो, फिर वो तमानियत नफ्स, उसका नफ्स जो है वो लव्वामा, रादिया और मर्दिया तक पहुँच गया हो। इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों के अंदर हम नफ्स की कैफियत को भी बयान करेंगे। फिर उसके अंदर हिल्म हो, बुर्दबारी हो, फिर तवाज़े हो उसके अंदर, यानी इनकिसारी हो, आजिज़ी हो, फिर इल्म हो, फिर सिद्क हो उसके पास, वफा हो,
हया हो, शर्म हो, ऐसे तमाम वक़ार, सुकून जैसे पसंदीदा औसाफ से वो मुत्तसिफ हो। तो ये सारी जो सिफ़ात हैं ये हमारे बुज़ुर्गों ने उसके अंदर बयान की कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बल्कि दीगर बुज़ुर्गों ने, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं अल्फाज के साथ मिलते जुलते, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं अल्फाज के साथ मिलते जुलते अल्फाज के साथ, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम बुज़ुर्गों की तालीमात का जो खुलासा है वो ये है कि आप फरमाते हैं कि पीर उसे जानो कि जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, जिसका एक कदम शरीयत पर हो और जिसका दूसरा कदम तरीक़त पर हो। तो लिहाजा यही शेख कामिल की अलामात बयान की गई। इस पर तफसीलात भी हैं, मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया। और कभी भी जाहिल, शरीयत का बागी और तरीक़त का बागी, अनपढ़, जाहिल, फासिक, फाजिर ऐसे बंदे के हाथ पर कभी भी बैत ना करें। ये हमारे हुसैनियों के लिए सबक है कि जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से ये अशार मंसूब भी हैं कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, के सर दे दूंगा लेकिन यजीद के हाथों में हाथ नहीं दूंगा। यही इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यजीद क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या वो सहाबी रसूल का बेटा नहीं था? क्या वो खलीफा वक्त नहीं था? लेकिन वो फासिक था, एलानिया गुनाह करता था, शरीयत की हदें तोड़ता था। और जिस तरह के मैंने पिछली एक नशिस्तों के अंदर अर्ज़ किया था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर जो उम्मत ने बैत की थी वो बैत खिलाफत भी थी और बैत तकवा भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के, यही वजह थी। अगर इक़्तिदार को मानना होता तो इक़्तिदार की सिर्फ और सिर्फ बैत न थी, वो बैत तकवा भी थी। इसी वजह से इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सर तो दे सकता हूँ लेकिन ऐसे शरीयत के बागी के हाथों पर हाथ नहीं दे सकता। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शरीयत के बागियों से बचाए और अल्लाह ताला हम सबको हक़ाइक़ को समझने की तौफीक दे। मैं यहाँ पर एक आखिर के अंदर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप फिर कामिल की पहचान कैसे होगी आपको? बाज़ इस तरह होता है कि उनकी दाढ़ी भी है, दस्तार भी है, इमामा भी है, लिबास भी है, लेकिन आप किस तरह आपको उसका इल्म होगा कि ये अल्लाह के साथ बंदा जुड़ा हुआ है, ये पीर साहब जो हैं अल्लाह के साथ मुत्तसिल हैं, अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका एक रूहानी रब्त है। तो उसकी एक बेहतरीन सी मिसाल ये है, जिस तरह मैंने सारी पीछे अर्ज़ की हैं कि शेख के अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए और ये खामियाँ उसके अंदर हों तो आप उसको कभी भी पीर ना माने। लेकिन अगर आप ये सारी शरीयत वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, सुन्नत का पाबंद हो, ये तमाम इबादत बजा लाता हो, फिर आप उसकी सोहबत इख्तियार करें। फ़ौरन कभी भी उसको अपना पीर ना माने, आप उसकी सोहबत और संगत इख्तियार करें। आप उसकी सोहबत में बैठकर आपका दिल नेकी की तरफ माइल हो गया, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई और उसके रसूल की मोहब्बत आ गई, फ़िक्र आखिरत बढ़ गई, उसकी सोहबत में बैठकर गुनाहों से नफरत हो गई और नेकी में रग़बत हो गई, और उसकी सोहबत के असर से, उसके दर्स और बयान के असर से आपकी कैफियत, रूहानियत, दिल, दिमाग सब बदल गया और आप अल्लाह की तरफ गामज़न, रास्ते की तरफ गामज़न हो गए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो गए। तो यकीन समझ लीजिए यही शेख कामिल है, और जिसके अंदर ये ज़ाहरी तमाम अलामात के बाद ये जिसके अंदर अलामत पाई जाए तो फिर देर ना करें, ऐसे अल्लाह के नेक बंदे की बैत करें और उससे फिर इल्म हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।